Friends, today we shall study the types of chemical reactions. Okay, so The very first thing is that what is chemical reaction? Again I am repeating, such reaction which gives rise to a new substance. A reaction which gives rise to new substance. That is formation of a new substance. Okay, the reaction in which a new substance is formed. So today we shall study the types of chemical reactions. Types of chemical reaction. REACTIONS. ठीक है. वेरी फर्स्ट इज, यहाँ पर एक कर लेते हैं, ये कॉम्बिनेशन, COMBIE, कॉम्बिनेशन, NATIO, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. So by name itself it is clear what is combination. Some reactants will combine, okay, to give a single product. Two reactants are there, the one product is there. Second, decomposition. देखो, decomposition जो है ये the root word है decompose से ही decomposition word बना है. ठीक है, तो अब नाम से clear, by the name itself it is very clear that this is the chemical reaction in which a single reactant decomposes into two products. That is, the decomposition of a single reactant will give rise to the formation of two products. Okay, so decomposition, अब ये डिकम्पोज से बना है इसलिए मैंने ये लिखा था. ठीक है, डिकम्पोजिशन, SIPI, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. 2 number. And further decomposition reaction is also divided into 3 reactions. So later on we will study after giving very brief description of the all chemical reactions. Third one is displacement. Displace, root word is place, okay, and opposite of the place is displace. तो displacement जो रिएक्शन है उसमें the reaction in which एक जो रिएक्टेंट होगा ना वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा वो. ठीक है, तो वो भी, इसका भी हम डिस्प्लेस, रिएक्टेंट्स एक दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस करेगा. ठीक है, इसका भी हम बाद में देंगे. मैं साथ में जो है लिखता जा रहा हूँ और आपको जो इनका नाम दिया गया है केमिकल रिएक्शंस को साथ में आपको बताते चल रहा हूँ ताकि आप भूलो नहीं. ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आप प्लूरल में इसको लिख सकते हैं क्योंकि बहुत सारी इसमें रिएक्शंस होती हैं. ओके, फोर्थ वन इज, देखिए यही होगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उसमें डबल लग जाएगा आगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो उसमें भी जो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा इस वाले में, डबल DOUBLE, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, फिफ्थ वन इज एक्सोथर्मिक, EXO, एक्सोथर्मिक. देखो ये कैसे बन रहा है, एक्सोथर्मिक. थर्मिक में होता है हीट, एक्सो मानी आउटसाइड, जो हीट को प्रोड्यूस करे. द रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड.
तो बाय द नेम itself it is very clear that which type of chemical reaction is it. Okay, so exothermic reaction दो वर्ड से बना है. दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, exothermic reactions. अब जो सिक्स्थ वन है, याद कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा एंडोथर्मिक. देखो एंडो इनसाइड, जो हीट को इनसाइड ले लेगा, मतलब इनसाइड, जैसे मान लो मैं किसी चीज को इनसाइड ले ले एब्जॉर्ब कर ली मैंने किसी चीज को, तो द केमिकल रिएक्शन विच एब्जॉर्ब्स थर्म मींस दैट इज थर्म से टेम्परेचर, थर्मामीटर, वो सब किससे बनता है? थर्मा, इसमें वर्ड की जो वर्ड है थर्म, THER, थर्म. ओके, तो थर्म जो है इसका कीवर्ड है. तो एंडोथर्मिक, ये भी थर्मिक इसमें वर्ड यूज हो रहा है, थर्मिक. ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शंस. तो ये दोनों अपोजिट है. इसमें हीट इज जनरेटेड, हीट इज क्रिएटेड, बट इन दिस केस द हीट इज एब्जॉर्ब्ड. इसमें जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है. ओके, अब मैं आपको इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूं, याद करने के साथ में बताता हूं. देखो ये तो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन, बोथ ऑफ द रिएक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर. इन दिस केस one single reactant breaks into two products. In this case, in this case, two reactants combine to give a single product. In this case, decomposition reaction में one single reactant breaks into two products. Okay? See, इसमें मैं बताता हूँ. जैसे आपको reactant 1 reacts with reactant 2 to give arise a single product. But in this case, one single reactant gives rise to two products. See, here these two are combining to give a single product. Here one reactant is breaking into two products. और इसका मैं स्पेसिफिक आपको बताता हूं. देखो, two or more substances combine to form a new single substance. इस केस में two or more substances combine to form a new substance. यहां तो मैंने earlier I told you here are two reactants are there, but मैंने लिखा two or more. Okay, so in some exceptional cases, okay, where products may be these reactants may be more than two, but there will be formation of single product. Okay, so here in this case, this is opposite to combination reaction. Here a single substance decomposes to give two or more substances. Okay, here a single reactant breaks into, ये मैं वर्ड जो दे रहा हूं breaks into,
यदि आप मान लो डी, हालांकि डी जो डीकम्पोजिशन है इसी से आप वर्ड निकाल सकते हो, ये लिख सकते हो आप, और डीकम्पोजेस। ओके, ये एक्स्ट्रा आपको मैं एक वर्ड दे रहा हूँ, डीकम्पोजेस इनटू टू substances। substances क्या है? प्रोडक्ट्स। दैट इज क्या है? आई ई, दैट इज प्रोडक्ट्स। सी, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो ये है, इसके इसके 3 टाइप्स हैं, वो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। फिर बाद में हम जो है फॉर एग्जांपल हम ऐसे इक्वेशन रिएक्शंस लेंगे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करें, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करें। तो सारी जो हमने जो केमिकल रिएक्शंस दे रखी हैं, इन सबको वो प्रिसाइसली एक्सप्लेन करेंगे और हमें समझ में आएगा कि हाँ, ये किस तरह से ये जो रिएक्शंस हैं, ये किस तरह से इसमें फंक्शनिंग हो रही है रिएक्शन की, ठीक है। चेंज किस तरह से चेंज हो रहा है इसमें, केमिकल चेंज किस तरह से हो रहा है। तो ये जो आपकी ये वाली जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसके तीन प्रकार की होती है, ठीक है। डिकम्पोजिशन टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके जो 3 इसके है, ये चार्ट बन जाएगा अपना, 1 2 और 3। पहली आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब आप समझ रहे हो, फिर हीट से है, मतलब हीट इसमें हीट की प्रेजेंस में ये होगा, ये केमिकल रिएक्शन होगी, डिकम्पोज होंगे। तो थर्मल हम हीट जो है हम अप्लाई करेंगे केमिकल रिएक्शन में, तब जाके जो भी आपका रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज होगा प्रोडक्ट्स में। थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा है आपका फोटोकेमिकल, ओके, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल में क्या हो गया, फोटो के नाम से आप समझे सनलाइट का हो गया, फोटोकेमिकल। इसमें तो 2 वर्ड है, फोटोकेमिकल मतलब फोटो मीन सनलाइट। सनलाइट जब इसमें हम अप्लाई करेंगे, इसमें सनलाइट प्रेजेंस में कोई केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, तब जाके उसमें केमिकल चेंज आएगा, ठीक है। इसमें रिएक्टेंट पर हम जब सनलाइट हम अप्लाई करेंगे, तब जाके ये डिकम्पोज होगी प्रोडक्ट्स में, ओके। तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। थर्ड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रो से आप समझ लेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इस केस में आपको इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करना पड़ेगा किस पे, रिएक्टेंट पे, ताकि वो डिकम्पोज हो सके 2 और मोर प्रोडक्ट्स में, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक 2 वर्ड है, LYTI, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ओके, अब देखिए ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि नाम से मैंने अर्लियर आई टोल्ड यू दैट सम रिएक्टेंट इज डिस्प्लेसिंग सम अदर रिएक्टेंट। तो कौन सा रिएक्टेंट होगा जो डिस्प्लेस करेगा इसको, इसका मैं बहुत ही छोटा इसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में है मेरा इसमें। व्हेन अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जो एलिमेंट तो मोर रिएक्टिव है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। Here more reactive element, मोर रिएक्टिव, ये आपको वर्ड ध्यान रखना, मोर, ठीक है। रिएक्टिव एलिमेंट कॉमन हो जाएगा दोनों में। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस
लेस रिएक्टिव, दूसरा टर्म लेस, मोर और लेस दो वर्ड। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है। अब जब हम अभी क्या है, इतने अपने पास जगह नहीं कि हम सभी की जो है केमिकल रिएक्शंस अभी लिख सके, आपको समझा सके। ठीक है। तो जब हम एक एक हम करेंगे, एक एक हम एग्जांपल्स लेंगे ऐसे केमिकल रिएक्शंस के, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, सबके, है ना। अब आ गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, इसमें इन दिस केस देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स। जब टू रिएक्टेंट्स है तो वो अपने उनके जो आयंस उनको एक्सचेंज कर लेंगे। टू है, दोनों एक्सचेंज करेंगे तो दोनों फिर डिफरेंट न्यू सब्सटेंसेस बनाएंगे वो। ठीक है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट से वर्ड यूज किया गया है। ओके, यहाँ तो एक सिंगल है, मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, दैट्स इट। बट इन दिस केस देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स। Ions are exchanged between two reactants forming new compounds. Okay, ions are, इसमें वर्ड जो है ions, ये आपको नहीं बोलना ions. Ions are exchanged. Ions are exchanged. EXCHAN between two reactants। ठीक है, फॉर्मिंग, जो क्या फॉर्म करेंगे, ये एक्सचेंज होगा व्हेन आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, तो क्या फॉर्म करेंगे, फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंसेस। ओके, एक्सोथर्मिक में बता दिया था, इन दिस केस हीट इज क्रिएटेड, हीट क्रिएट होगी, या क्रिएटेड आप भूल सकते हो तो आप फॉर्म लिख सकते हैं, हीट इज फॉर्म। ठीक है, इन दिस केस इसका अपोजिट है, हीट इज एब्जॉर्ब, ABSORBED, इसका रूट वर्ड क्या है, ये एब्जॉर्ब है, ABSORB, एब्जॉर्ब से एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब। ओके, क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है इस वाले हिस्से को मिटा देते हैं, है ना, या फिर हम ये पूरा मिटा देते हैं, फिर एक एक को एक्सप्लेन करेंगे इसको। ठीक है, पूरा मिटा देते हैं इसमें, पहले कॉम्बिनेशन हम करेंगे तो इसको हम छोड़ देते हैं, डिकम्पोज को यहाँ से काट। हाँ यस, ये एक्सप्लेन करने से पहले जो इनको हम एक्सप्लेन करेंगे, जो एग्जांपल्स आपके केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे हर टाइप की केमिकल रिएक्शन को, उससे पहले मैं कुछ जो टर्म्स जो है, कुछ चीजें जो है वो भी रिएक्शंस ही हैं, लेकिन वो जो रिएक्शंस मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ये 6 हो गई जो मेजर केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप्स हैं, ये हो गई। तो कुछ रिएक्शंस हैं जिनको भी अलग हम नाम देते हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है, रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन, वो सब इन्हीं केमिकल रिएक्शंस में वो इम्प्लाइड होती हैं। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन में कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसी में वो रिएक्शंस होती हैं, है ना। इसलिए हम 7th 8th वो नाम हमने उस सीरीज में हमने उनको रखे नहीं है, क्योंकि वो सब इन सभी जो तरह की इक्वेशंस की जब हमने बात की थी, केमिकल रिएक्शंस की, जो 6 टाइप्स की हमने बात की थी, उन्हीं केमिकल रिएक्शंस में वो इम्प्लाइड है। जैसे मैं बात करूंगा ऑक्सीडेशन,
अब देखो ये भी आप याद 6 ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट जो केमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन मान लीजिए आप इसको, ये आप नाम दे दीजिए। अब हम जो एग्जांपल लेंगे ना, तो ये भी बीच में कहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, व्हेन वी विल एक्सप्लोर all 6 types of chemical reactions, then if in any reaction if oxidation will be there, we will discuss that. Okay, emphasizing this point, oxidation reaction. इसका अपोजिट है रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिडक्शन। आप दोनों को समझिए, इसमें बहुत सिंपल है, ठीक है। अब लोग समझते हैं दोनों को। आप जो और जो केमिकल रिएक्शंस है उनको भी आप क्लबिंग करके याद कर सकते हैं, जैसे थर्मिक जो थी उधर, ठीक है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। शुरू वाली जो अपोजिट थी कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, आप नेम के हिसाब से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉम्बिनेशन और जो डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन हो वो तो एक दूसरे की अपोजिट है। सिमिलरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन वो भी एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है वो अपोजिट नहीं है, सिर्फ नेम से आप याद कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इस तरह से आप कंपेयर करके चलेंगे तब याद हो जाएगा। देखो ऑक्सीडेशन क्या था, ऑक्सीडेशन आपने 9th में पढ़ा होगा, ऑक्सीडेशन इस वर्ड से आपको पकड़ना है। कोई भी चीज ऑक्सीडाइज कब होती है, मान लीजिए कोई आयरन है, आयरन का कोई आइटम उसमें रस्टिंग हो गई, तो क्यों होती है, बिकॉज दैट गेट ऑक्सीडाइज्ड विद द ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन विल हैपन व्हेन देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडेशन क्या होगा, सीधा सा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और जब अब इसमें दोनों, ये जो दोनों केस है, ये जो दोनों, इसमें दो केसों की कहानी, बस ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की। अब देखिए इसमें ऑक्सीजन एडिशन हो रहा तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका आप उल्टा कर दीजिए, इधर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, and removal of REMOVAL, removal of oxygen, ठीक है। अब इसके अलावा और जो हम इसमें बात करेंगे वो है माय डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि आपको बिल्कुल कौन सा, यू हैव टू स्टे फोकस रहना है अपनी स्टडीज़ के लिए। और मैंने शायद इसमें कहीं नोट नहीं कर रखा, ये मुझे याद है पढ़ाते पढ़ाते मैंने बीच में आपको बता दिया, लेकिन मैं इसमें देख रहा हूँ कि वो कहाँ है। यस वन बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें, एक वर्ड की हम बात करें दोनों में, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीडेशन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्लस हो जाता है इसमें, ठीक है। इसका जो प्रॉपर जो वर्ड देंगे इलेक्ट्रॉन्स का वो कैसे देंगे, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, GAIN, गेन लॉस। तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे इसमें। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें वर्ड आ जाता है वर्सेस ऑक्सीजन वर्सेस हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें 1 2 3
ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शंस है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए आपके टूल बॉक्स में तीनों वर्ड होने चाहिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जैसे इसमें अब देखिए, अब हम इसको जोड़ के देखते हैं। जहां पे हाइड्रोजन रिमूव हुई है वही लॉस हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव होती है केमिकल रिएक्शन में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका भी वो भी लॉस हो जाता है। इट मींस दोनों क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है दोनों में। दिस पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस केस अगेन यू कैन सी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जहां ऐड हो रहा है हाइड्रोजन, जहां ऐड हो रहा है वहीं पे हमें इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है। तो इसको याद करने के लिए आप जो है इस तरह से माइंड में एक रिलेशनशिप बिठा सकते हैं। हाँ भाई, जो हाइड्रोजन है ये दोस्त है किसका, ये दोनों साथ चलते हैं, जो आयन बोल लो या इलेक्ट्रॉन बोल लो इसको, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों दोस्त हैं, ये साथ साथ चलते हैं। ये देखो यहाँ इसको भगा दिया हाइड्रोजन को, तो ये भी इसका लॉस हो गया। यहाँ पे आपने हाइड्रोजन ऐड की तो इलेक्ट्रॉन्स का आपको गेन हो गया, ठीक है। तो ये चीज आप कभी नहीं भूल सकते। इस ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में आपको जो टूल, जो आपको टूल किट है आंसर राइटिंग जो अटेम्प्ट करेंगे, आपके पास जो वोकैबुलरी है उसमें वर्ड्स होने चाहिए आपके उसमें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन्स और एडिशन और रिमूवल एंड लॉस और गेन, ये जो है ना, एडिशन दोनों तरफ यूज हो रहा है, रिमूवल दोनों तरफ यूज हो रहा है, लॉस यहाँ यूज हो रहा है, इसका पूरी गेन ये यूज हो रहा है। ये फोर जो है आपकी इन वर्ब्स हो गई है ना, एडिशन, रिमूवल, रिमूवल, एडिशन, मतलब रिमूवल एडिशन दोनों में यूज हो रहा है, लॉस और गेन दोनों में यूज हो रहा है। तो गेन कहाँ होगा, जहाँ हाइड्रोजन इज एडेड, लॉस कहाँ होगा, वेयर हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक और रिडॉक्स रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये जो ये अपना क्लियर हो गया, अब इसको हम मिटा देते हैं, रिडॉक्स की उसकी बात करते हैं, रिडॉक्स की ओर। इनको मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ, और जो मैं जो टाइप, जो 6 टाइप्स के हमने जो अभी जो हमने डिस्कस किया है, जो भी समझे हैं, उन्हीं रिएक्शंस में भी ये रिएक्शंस होती हैं, है ना। इसलिए अलग से इनको हमने कैटेगराइज नहीं किया, अलग से इनकी कैटेगरी, इनका अलग से हेड नहीं बनाया कि हमें 7th नंबर पे ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन और इस तरह से, है ना। और दूसरी तो दो इंपॉर्टेंट, एक तो रिडॉक्स, आपके पेपर में 1 या 2 नंबर की उसमें रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स REAC क्या है, रिडॉक्स एंड प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब का मतलब प्रेसिपिटेट आप समझते हैं, मैं समझाता हूँ। प्रेसिपिटेशन जो रेन, जो सावरिंग ऑफ रेन ड्रॉप्स होती है उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन, ओके। लेकिन वो हल्की होती है एकदम ऐसे, जो ओस का जो ड्यूज का जो गिरना होता है वो दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये तो सारे एक एक्विनस में है, मतलब दैट इज इंक्लूडिंग वाटर कंटेंट। इसके अलावा बहुत सारी जो, जैसे और मैं बताता हूँ, जैसे आपने बचपन से पढ़ा होगा कि गमला होता है, ये गमला होता है, ठीक है, उसमें पौधा होता है, पौधे का पॉलिथीन बांधने तो यहाँ बूंदे में हो जाती है, प्रेसिपिटेट हो जाती है, प्रेसिपिटेशन मतलब बाद में ये जैसे गिरने लगती है, ठीक है। तो ये सब प्रेसिपिटेट, ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कि या तो जो केमिकल रिएक्शंस में प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट, ठीक है, तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। प्रेसिपिटेट रिएक्शन लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आप इसको लिख सकते हैं, प्रेसिपिटेट या आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो प्रेसिपिटेशन, PATI प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इनको आप जोड़ के याद नहीं कर सकते, ये अलग है, ये अलग है। देखो अब रिडॉक्स में क्या होता है, अभी हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात की थी, उससे जुड़ी हुई है, ठीक है। इन दिस केस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन
रिएक्शंस अकर साइमल्टेनियसली, इसमें दोनों साइमल्टेनियसली, दोनों ही मतलब दोनों साथ साथ दोनों ही रिएक्शन होती है। इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। तो आप इसको इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स। Redox reaction is a reaction, मैं आपको ये लिखना बता रहा हूँ, आप कैसे आंसर राइटिंग करेंगे। रिएक्शन इन विच, ये आपकी लैंग्वेज हो गई यहाँ तक, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो रिएक्शंस हैं अकर एक वर्ड आप इसमें यूज कर दो तो आपका जो ये काफी इफेक्टिव हो जाएगा, साइमल्टेनियसली। ओके, इसका स्पेलिंग देखो, साई एस आई एम यू एल टी, साइमल्टे नी एस, इसको आप एडवर्ब बनाओगे साइमल्टेनियसली। ये आपकी रिडॉक्स हो गई। प्रेसिपिटेशन सीधा सा है, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म। तो इस केस में क्या होता है, ये वाला तो वर्ड है ना, ये इसलिए लिखा गया आपके प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। अब प्रेसिपिटेशन में यह क्लियर करना चाहता हूँ, केमिकल रिएक्शंस में जरूरी नहीं कि जैसे मैंने वाटर वाला भी बताया वही है इसमें है, इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ केमिकल रिएक्शंस में कुछ जो है इवन जो मेटल्स भी होते हैं उनके प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, मतलब जैसे उनसे केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें डस्ट लाइक कुछ बन के और ऊपर जो है वो कहीं चिपक जाएगा वो, या फिर नीचे इकट्ठा हो जाएगा एकदम, है ना, बॉटम में। तो इस तरह से आप जो प्रेसिपिटेट रिएक्शन में द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। नाउ वी आर फ्री टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे और डिस्कशन में हम सारी वो केमिकल रिएक्शंस इसमें लेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। इसके अलावा जो पहले जो क्वेश्चन आपके जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स हुई है उनमें जो पूछा गया है वो सारी एरिया डिस्कस करेंगे, एक वन बाय वन आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी इसमें हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि स्टडीज में आप जितना पेशेंस के साथ आप विद कूल माइंड, एक्टिव सेंसेस, ओके, आप लर्न करेंगे चीज़ों को, राइटिंग करके प्रैक्टिस करके, तो आपको बिल्कुल याद हो जाता है, ठीक है। तो मेरा क्या मतलब अपने नोट्स बना के रखता हूँ, पढ़ता भी तो भी नोट्स, पढ़ाता हूँ तब भी नोट्स, क्योंकि कितनी चीज़ें माइंड में, आपको कोई गलत चीज़ यहाँ पे मतलब रिकॉर्ड ना हो, इसलिए मैं अपना वो जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे वीडियो में, ये स्कैन मिल जाएंगे, जो इसके बाद जो वीडियोज आएंगे स्कैन को भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसी में, ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अभी तो मैं ऑन बोर्ड इसको मैं करवा रहा हूँ ताकि प्रैक्टिकली इसमें जो है वो आपके सब समझ में आ जाए, है ना। तो अब सबसे पहले हम लेंगे इसमें हमारी जो वेरी फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन का मैंने कहाँ लिख रखा है, थोड़ा ऊपर उल्टा सीधा लिख रखा है मैंने, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से इसमें पूरा बताऊंगा। और अभी तक आपको बात करते करते भी वो मेरे कहीं दिख नहीं रहा है, तो हाँ उसको लिखा है, लेकिन लिखा मैंने उसको ज़रूर है, वो मुझे दिख गया, ठीक है, यस। तो अब हम इसको वाइप आउट करते हैं। ओके, तो जोश जो है उसको बनाए रखिए, सर्दी का टाइम है और मैं समझ सकता हूँ आप जो है बच्चों, आप बिस्तरों से नहीं निकल पा रहे हैं, आपके पेरेंट्स मम्मियाँ कह के थक जाती, बेटे उठ जा, बेटे उठ जा, बेटे उठ जा, पेपर है, क्यों नहीं उठते हो। अब आप क्या, इतनी सर्दी है, इसके लिए क्या करो आप, मैं तो कह रहा हूँ पानी एक रखिए, जब भी आप सो तो पानी रखो अपना, ठीक है। उठते ही आपको बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, बस मतलब अपने बिस्तर से ऐसे उठने बाहर निकल गए, ऐसे नहीं निकलना है, अचानक से उठ के बैठ जाओ आप, बैठ के थोड़ा सा ऐसे डीप ब्रीदिंग लीजिए आप, और दिमाग में
वो घूमना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। जैसे साइंस में आपको ये पढ़ना, चैप्टर 1 पढ़ना है, या फिर चैप्टर 2 मेटल्स नॉन मेटल्स का, या 4 पढ़ना है कार्बन कंपाउंड्स का, ठीक है। तो ये एकदम माइंड में जो है आपके ये एसिड्स एंड बेसिस कौन सा चैप्टर, या फिर मैथ में आपको कुछ भी पढ़ना है, या इंग्लिश में कुछ टेंसेस देखने हैं, है ना, कंपोजिशन वाला पार्ट देखना, तो आप तुरंत एक माइंड में पिक्चर बनाइए एकदम, यस मुझे ये करना है। फिर भी आपको आलस आए, पानी आपने रखा ही है, ठीक है, आपने आंखों पे पानी को पूरे चेहरे पे ना पानी के हाथों पे ऐसे चिपड़ के और ऐसे पूरे चेहरे को आंखों में लगा लो, कानों पे लगा लो, मतलब कुछ सोचना नहीं है, बस कर लो, आलस भग जाएगा। दूसरी जो आपकी जो गर्माहट है, जो आपके लक्ष्य की जो गर्माहट है, जो सोच की जो गर्माहट है, यस मुझे इतने मार्क्स लेके आने हैं, मुझे बढ़िया करना है, सीबीएसई बोर्ड में बहुत बढ़िया मुझे करना है, ठीक है। तो वो जो पैशन है आपका स्टडीज के लिए, वो भी एक गर्माहट का आपको काम करेगा, वो भी आपको जो लेजीनेस है उसको ड्राइव अवे करने में काम करेगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं मिडडे की। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम देखो 2 एग्जांपल लेते हैं। इसमें एग्जांपल्स लेते हैं, देखो कितने हैं इसमें। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, देखो। अच्छा, एक और चीज, अब हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का, एग्जांपल्स देंगे, साथ में ही मैं पहले उसको जो स्केलेटन फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड। ओके, उसी से आपको फिर बैलेंस दोनों में अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा इसमें। तो इसमें है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पहला जो अपना जो इक्वेशन होगा इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, आप ऐसे पहला डालेंगे इसमें, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और वाटर को आप चलो सिंबल नहीं डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, या फिर आप ब्रैकेट में भी इसको H2O कर सकते हो। अब देखो सिंपल है, इसमें कॉम्बिनेशन में अभी बनने के लिए आपको एलिमेंट दिखाई देगा, हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको हम लिखेंगे पहले स्केलेटन फॉर्म में, जो कि हमारी बाध्यता होती है उस चीज को समझने के लिए, क्योंकि आप इसमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप इसमें कुछ ना तो कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उनके एटम्स को नहीं आप क्रिएट कर सकते हो। तो हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन गैस में 2 एटम्स होते हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ऑक्सीजन का जो होता है, इसमें भी ऑक्सीजन के ये 2 इसमें एटम्स होते हैं, तो जाके ऑक्सीजन बनती है। तो ये दोनों मिलके क्या है, बनाते हैं वाटर। वाटर, ये आपका स्केलेटन केमिकल इक्वेशन हो गया। तो कि अब देखते हैं अनबैलेंस दिख रहा है, वैसे ही देखो H के 2 एटम्स है, यहाँ 2 है, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन का सिर्फ यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, अनबैलेंस है, ठीक है। तो आप इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से आप करोगे तो आपके ये आ जाए। सपोज कीजिए मैंने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे 2 लिखा मैंने तो ये 2 हो गया, ये इसके जो ऑक्सीजन है ये तो यहाँ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ 2 ही है, हाँ, तो यहाँ 2 लिख दो। अब देखो आप, ये बैलेंस हो गया। तो आप इस तरह से एग्जाम में आप पहले स्केलेटन फॉर्म में लिखना है, और मैं तो कहता हूँ आप अभी से याद कर लो इनको सब, भाई ये बैलेंस फॉर्म डायरेक्ट लिखना, ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे, क्योंकि वो काफी टाइम कंज्यूमिंग पेपर, काफी लेंथी पेपर होता है। तो ये आपको पहले से तैयारी करके चलना है। आप वहां जाके कुछ करेंगे इस तरह से तो आपका टाइम निकलता जाएगा, और आप कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप एग्जांपल लेते हैं बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसमें बर्निंग ऑफ कोल का, बर्निंग ऑफ कोल। अब बर्निंग ऑफ कोल में क्या है, जो सी किसका है, कार्बन। कोयला क्या होता है, कार्बन होता है। आप उसको जलाओगे तो क्या है एटमॉस्फेयर में, O2 है, ऑक्सीजन है, ठीक है। आप जब कार्बन को ऑक्सीजन जलाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, दूसरा इसको नाम दे सकते हैं आप इसको, जैसे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन सॉरी वाटर था, इस प्रकार आप इसमें कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ CO2, फॉर्मेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ठीक है।
अब देखो अब हम बात करेंगे डीकम्पोजिशन की। डीकम्पोजिशन में जो डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन है उसके भी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। हर टाइप के हम दो भी लेंगे तो 6 इक्वेशन उसमें हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा एक्स्ट्रा होगा तो हम उसको यहाँ डिस्कस कर लेंगे बोर्ड के ऊपर। तो ये तो आपका हो गया कॉम्बिनेशन का। अब हम जो है कॉम्बिनेशन के बाद में लेते हैं डीकम्पोजिशन वाला, ठीक है, जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पढ़ना उसको। यही हम लिख लेते हैं डीकम्पोजिशन वाले में लेंगे पहले ऊपर वाला, है ना, जो टाइप था उसका डीकम्पोजिशन में, थर्मल डीकम्पोजिशन का लेते हैं इसमें। आप यही लिख दो उसको DECOM कम OPO डीकम्पोजिशन TIO डीकम्पोजिशन रिएक्शन का हम छोटा शॉर्ट में लिख देते, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट टाइप जो था, इसका जो फर्स्ट टाइप है इसमें वो कौन सा था, थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वेरी फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। ये देखिए फेरस सल्फेट कम लेते हैं इसमें। मैंने इसलिए जो ऐसे केमिकल फॉर्मूला पहले करवा दिए थे ताकि अब हमें आसान रहे। फेरस सल्फेट का वो पता है, मैंने करवाया था इक्वेशन, वो इक्वेशन ही हम वापस रिपीट हो जाएगा आपके लिए और अच्छा याद हो जाएगा। फेरस सल्फेट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं, थर्मल, है ना। तो हीटिंग में ये होगा, हीटिंग, आप सपोज इसको गर्म करते हैं, ठीक है। तो वी शैल स्टडी, ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें जो फर्स्ट टाइप है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके 3 टाइप्स वर देयर, अर्लियर डिस्कस्ड। थर्मल था, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन था एंड इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसका जो फर्स्ट जो एग्जांपल ये है, यहाँ देखिए, जो फेरस सल्फेट है, ठीक है, उस पर हीटिंग करते हैं, थर्मल, नाम से क्लियर है, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हीटिंग करते हैं तो ये इट ब्रेक्स इनटू फेरिक ऑक्साइड, फेरस सल्फर डाइऑक्साइड, okay, which is gas, this is in state form, and again it is sulfur trioxide, it is also in gaseous state, okay, and this is the skeleton equation. अब आपको इसको क्या करना है, आप इसको जब बैलेंस करेंगे तो बैलेंस जब आप हीट एंड ट्रायल मेथड करेंगे तो जब आप डालोगे पूरी ये हो जाएगी, आप देख सकते हैं इसमें 2 फेरस का है, 2 फेरस का हो गया, 2 सल्फर का है, सल्फर 1 2 सल्फर भी क्लियर हो गया, 2 4 जा 8, तो 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी देयर इन दिस साइड, 3 हो गया, 3 और 2 5 और 3 8, ओके। सो दिस इज बैलेंस। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट जो है आपकी इसमें है, अच्छा ये इसका थोड़ा बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड इज कलरलेस गैस, ये कलरलेस गैस है और लिक्विड, ये गैस के फॉर्म में होती है, लिक्विड के फॉर्म में होती है। कलरफुल गैस और कलरलेस गैस और लिक्विड विद स्ट्रॉन्ग चोकिंग ऑर्डर, एकदम गले को जाम करने वाली इसकी स्मेल होती है, एकदम आपको गला जाम हो जाएगा, समझ, बट डेंजरस गैस, ठीक है। और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये जनरली एक कलरलेस लिक्विड है, ये जनरली कलरलेस लिक्विड है, बट इन दिस रिएक्शन जिसमें जो आपका फेरस सल्फर जो ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, और ये जो 3 आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इधर, ठीक है, फॉर्म हो रहे हैं, तो ये दोनों गैसियस स्टेट में है। जनरली ये वाला जो केमिकल है, ये वाला जो सब्सटेंस है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है और कलरलेस लिक्विड होता है, पानी तरह मान लीजिए इसको आप, ठीक है। और ये एक कलरलेस गैस है और लिक्विड गैस इस फॉर्म में होती है, लिक्विड में होती है, जो कि जो स्मेल है, इसका ऑर्डर है वो काफी ऑर्डर
ODOR, ओडर मतलब स्मेल, इसकी जो स्मेल है ना काफी चॉकिंग, चॉक कर देती है। CHOCK, चॉकिंग है क्या चीजें? कलरलेस, कलरलेस गैस और मिसलाप कर रहे हैं, ठीक है। अब हम दूसरी लेते हैं इसमें, दूसरा इसमें एग्जांपल लेंगे हम। ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम जो कार्बोनेट है उसको हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे उसको, तो आपका बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी इसमें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये केमिकल कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये केमिकल सब्सटेंस है, जो इसका फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, देखो इनमें देखो मैं इसका कैल्शियम का जो सिंबल है सी होता है, कैल्शियम, ठीक है। कार्बोनेट जो CO, इसका जो केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। और पूछ भी लेते हैं कि इसको और दूसरा नाम क्या है, जिसको आप जो क्वेश्चन देंगे CBSE बोर्ड वाले जो क्वेश्चन देंगे उसमें ये ना तो कैल्शियम कार्बोनेट वर्ड यूज करेंगे, वो लिख देंगे लाइमस्टोन। भाई लाइमस्टोन को जब आप हीटिंग, व्हेन यू गेट हीटेड द लाइमस्टोन देन राइट डाउन द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, प्रोडक्ट फॉर्म हो गए उनके नाम बताओ क्या क्या, या फिर राइट डाउन द इक्वेशन इन विच limestone is heated, ओके। तो लाइमस्टोन आपको पता होना चाहिए है कैल्शियम, इसके दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट also called limestone, limestone, ठीक है। अब आप जब इसको उसकी हीटिंग करवाते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा, आगे भी आएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तो आपको पता ही है, इसका आप लिखो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब हम देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। कैल्शियम का 1 एटम, कैल्शियम का 1 एटम, ओके। कार्बन का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 3, ऑक्सीजन 1 और 2, ये ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ऑलरेडी बैलेंस है, ये आपके समझने के लिए ऑलरेडी बैलेंस, ओके। थर्ड, फोर्थ, इसके यस, इसका 1 मोर है हीटिंग वाला, ठीक है। अब इसका जो थर्ड एग्जांपल है वो हम यहाँ नीचे करते हैं। ये है आपका लीड नाइट्रेट को जब आप हीट करोगे, थर्मल उसका जब थर्मली उसको डिकम्पोज करवाओगे उसको लीड नाइट्रेट को, तो क्या क्या बनेगा, उसका लीड ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा और ऑक्सीजन बनेगी, ठीक है। NO2 क्या है वो बताता हूँ, ये देखो लीड नाइट्रेट, लीड का सिंबल Pb है, ठीक है। बर्किट, स्मॉल बर्किट, एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन का 1 एटम है यहाँ पर, यहाँ 3 है, बर्किटानो क्लोज कर दिया और यहाँ 2, ये हो गया लीड नाइट्रेट। इसके आप हीटिंग करवाते हैं। लीड नाइट्रेट की हीटिंग करवाते हैं तो क्या क्या बनेगा, देखो लीड ऑक्साइड PbO, लीड ऑक्साइड प्लस ये इसमें लगा एक O इधर आ गया, Pb यहाँ गया, इसका दो ये इधर आ गया, ठीक है। अब अपने पास बनता है वो NO2, ठीक है, और ऑक्सीजन। अब ये बैलेंस है या नहीं है वो हम देखते हैं। ये अनबैलेंस है, ये अनबैलेंस है, तो ये क्या है, लीड नाइट्रेट, LEAD, लीड नाइट्रेट, नाइट्रेट TRA, ये है लीड ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड। तो अर्लियर हमने देखा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो अर्लियर वी सॉ दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज देयर, decomposition, this one decomposition reaction is there. In type of chemical reactions we discussed 6 types of chemical reactions. One was combination chemical reaction, second was decomposition chemical reaction, third one was double displacement reaction, fourth was double displacement chemical reaction, fifth was exothermic, and sixth was endothermic chemical reaction. So now we are studying there are also 3 types of decomposition reaction. First is thermal decomposition reaction, जो हम पढ़ चुके हैं, इसके एग्जाम्पल्स हम रख चुके हैं, जिसमें दिस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, हियर द reactants decomposes into products when therm that is heat is applied. इसमें हम हीट का अप्लाई करते हैं तब जाके वो जो रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज होता है प्रोडक्ट्स में। इन दिस केस फोटोकेमिकल, बाय द वेरी नेम इट इज वेरी क्लियर, फोटो मीन्स होता है सनलाइट, ओके। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो केमिकल रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जो आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो डिकम्पोज होते हैं प्रोडक्ट्स में, इट इज कॉल्ड photochemical decomposition reaction, okay, the reaction in which the reactant breaks into products in the presence of sunlight. Photo means sunlight, ये जो है इसका मतलब सनलाइट होता है इसका, ओके। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल इसका हम देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। इसमें हम देखेंगे कि जो आपका सिल्वर क्लोराइड है, ये जो आपका केमिकल सब्सटेंस है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में, आप लिख लीजिए सनलाइट, ओके। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट ब्रेक्स इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। The chemical formula of the chlorine is this one. There are 2 atoms of the Cl to form a chlorine, a molecule of chlorine, okay. So now we have to see whether this equation is balanced or not. So we can see that here in reactants only 1 atom is there, but here 2 atoms are there. In silver 1 atom, here in silver 1 atom. So this one is balanced, but here ये 1 है या 2 है, तो बैलेंस नहीं। तो आप उसको बैलेंस कैसे करोगे, तो आप जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से आप 2 प्लेस कर दीजिए, 2 तो या फिर आप यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये 2Cl ये हो गया, तो ये आपका बैलेंस हो गया। सेकेंड जो आपका एग्जांपल है वो भी सिल्वर से जुड़ा हुआ, सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, breaks into 2 products. First is
silver, and second is bromide. Okay, 2. The same case is here. This is unbalanced because here only one atom is there, but here 2 atoms are there in products. So in the similar manner, in the same way, you can balance it. Okay, so you can put 2 here, 2 here. Okay, now it is balanced. Okay, so in photochemical reaction, the reactant decomposes into products in the presence of sunlight. Okay, clear. अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट, DIS, डिस्प्लेसमेंट, पहले मैं समझा चुका हूँ आपको. इसमें रूट वर्ड प्लेस है, ठीक है. इसका अपोजिट हो गया डिस्प्लेसमेंट. इसका बना दिया हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. As earlier I have told you about this reaction. In this reaction, one reactant displaces another reactant. Which one will displace the another? Which is more reactive? So more reactive elements displaces less reactive element. इसको फिर मैं एक यहाँ लिख लेता हूँ. इन केसेस में क्या होता है कि more reactive reactant, more reactive reactant, REACTANT, displaces less reactive more reactive element. सॉरी, लिखने में हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, है ना. कोई नहीं, ये ह्यूमन एरर्स हैं, हो जाती है. तो more reactive element displaces less reactive element. तो अब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसका हम एग्जांपल लेंगे. फर्स्ट एग्जांपल है इसका फेरस आयरन. इसको हम रिएक्शन करवाते हैं किससे? कॉपर सल्फेट से. ठीक है. अब यहाँ देखिए आप, यहाँ जो ये जो फेरस है ये मोर रिएक्टिव है देन कॉपर. ओके, सो दिस विल डिस्प्लेस इट एंड इट विल गेट अटैचमेंट विद सल्फेट. ओके, फेरस सल्फेट बता क्या? कॉपर. इसने कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया. तो हियर कॉपर इज डिस्प्लेस्ड. हियर कॉपर, जो Cu इसका सिंबल है, इज डिस्प्लेस्ड बाय फेरस. ठीक है. अब हम देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है. 1 है, यहाँ 1 है फेरस का, कॉपर का 1 है, कॉपर का 1 है, सल्फेट का ये ठीक बराबर है. ठीक है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है. अब हम दूसरा देखते हैं. तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन एलिमेंट्स इज मोर रिएक्टिव. ओके, तो सपोज कीजिए फेरस और कॉपर उसमें आता है, तो फेरस ज्यादा रहेगा इसमें. फेरस जो है वो है मोर रिएक्टिव है देन कॉपर. नेक्स्ट इज जिंक. नेक्स्ट अपना है जिंक. रिएक्शन करवाते हैं हम कॉपर सल्फेट से.
तो यहाँ जिंक क्या करेगा, फिर कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा लाइक फेरस। ओके, सो इट विल बी जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो हियर अगेन कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय जिंक। तो इन तीनों में जो है कॉपर ही जो है लेस रिएक्टिव है फेरस से भी और जिंक से भी, दैट इज जिंक एंड फेरस आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये हम यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ आप यहाँ हमें बिल्कुल जो है स्टार बना के इस तरह से बना के कर सकते हो, फेरस एंड जिंक आर मोर reactive reactants than copper। ये आप डिस्कस इसमें निकाल सकते हैं। अब थर्ड आता है अपना थर्ड एग्जांपल, इसमें आता है आपका ये शीशे का है, ये पीबी किसका है, मरकरी का है। पीबी दोस्तों किसका है कंफर्म कर लेते हैं, गलत काम लेके नहीं चलना है, इसमें लिखा हुआ नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो ये 9th की क्लास में मिलेगा, इससे पहले लीड का है, लीड। ओके ओके, दिस इज लीड। लीड हियर, दिस इज लीड। लीड इज reactant here with copper chloride, this is copper chloride। अब ये देखने से लग रहा है, फिर मुझे लग रहा है कि कॉपर के फिर जो लात मारी जाएगी, ये जो लीड है वो भी कॉपर के लात मार देता है और लीड क्लोराइड यहाँ बना देता है, PbCl2, और आपका ये कॉपर अलग हो गया। यहाँ फिर आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं lead, ferrous and zinc are more reactant than copper। ठीक है, अभी हम देखते हैं ये कि ये बैलेंस है नहीं है। लीड का 1 है, लीड का 1 है, कॉपर 1, क्लोरीन के 2, क्लोरीन के 2, तो ऑलरेडी बैलेंस ही बैलेंस। तो अगेन हियर कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय लीड। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वाला रिएक्शन है, इसमें आपको बिल्कुल नहीं बोल सकते, इसमें कॉपर जो एलिमेंट है वो दैट इज रिपीटेडली बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय फेरस, जिंक एंड लीड रेस्पेक्टिवली। तो ये कॉपर बार बार डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये अपनी डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है ये अपनी क्लियर हो गई। इससे पहले मैं लिखवा देता हूँ, इनके जो नेम है वो लिखवा देता हूँ। CuSO4 क्या है, CuSO4 सपोज कीजिए आप इसको 1 लगाना है, ठीक है, यहाँ लिख देंगे। और ये इसको आप टू कर लीजिए, इसको आप कर लीजिए 2, इसको कर लीजिए 3 और इसको कर लीजिए 4। लिखता हूँ फर्स्ट क्या है इसमें, फर्स्ट जो है ये कॉपर सल्फेट, कॉपर COPPER। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ, इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे नेम दे देंगे, ऐसे इस तरह से नेम दे देंगे, फिर आपको फॉर्मूला याद हो नहीं हो, इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको याद होना चाहिए कि कौन सी कॉपर सल्फेट है, सेकंड फेरस सल्फेट है, ठीक है, फेरस सल्फेट FeRrus, फेरस सल्फेट आ जाएगा। थर्ड वन कौन सा, ये जिंक सल्फेट है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख दो जिंक सल्फेट। फोर्थ कौन सा है, फोर्थ आपका कॉपर क्लोराइड, ये कॉपर क्लोराइड, क्लोराइड।
एक बच गया, हमने इसको किया ये फिफ्थ वाला लीड क्लोराइड है ना, फिफ्थ हो जाएगा लीड क्लोराइड, लीड क्लोराइड। अभी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में, क्योंकि इससे पहले मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इससे पहले मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर। वेरी फर्स्ट वाज कॉम्बिनेशन, सेकंड वाज डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन, एंड जो डीकंपोजिशन रिएक्शन था उसके भी 3 पार्ट्स थे। फर्स्ट था थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, सेकंड था उसका फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन, और थर्ड था इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। जो रह गया हमने पढ़ा नहीं है वो देखते हैं अभी, इलेक्ट्रोलिटिक वाला वो रह गया था, ठीक है। फिर हम चौथा करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं इसमें, तो अब ये मिटा देते हैं और जो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक वाला जो था ना, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन केमिकल रिएक्शन, उसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। वो रह गया था जैसे वाटर है, उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है ना। एच टू में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो क्या ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ये टूट जाएगा। अब ये देखते हैं, ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है, ये अनबैलेंस है, ठीक है। तो आप 2 लगा दो, तो 2 4 या 2 लगा दो, और 2 ऑक्सीजन में 2 एटम्स है या 2 है, तो ये आपकी बैलेंस होगी। ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। ये रह गया था बच्चों, आप सोच रहे हो सब ने इस बात लिखवाया नहीं, तो लिखवा देता हूँ डीकंपोजिशन रिएक्शन। सिंपल है, वाटर के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो ये जो है वाटर इसमें डिकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीप्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस केस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको मैंने बताया था, डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि जो आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन 2 रिएक्टेंट्स। ओके, अब इसका हम एग्जांपल्स देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। फर्स्ट इसमें एक इसमें एग्जांपल हम पढ़ेंगे, जो पहला एग्जांपल है इसका। इसमें आप देखिए बेरियम क्लोराइड, जो बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, ये स्टेट में एक्यूनस स्टेट में है, ये एक्यूनस स्टेट में है। इसको रिएक्शन करवाते हैं हम सोडियम सल्फेट से, ठीक है, और ये भी एक्यूनस फॉर्म में है। अब ये क्या करते हैं दोनों, इसमें ये था डबल डिस्प्लेसमेंट। इन डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन ions are exchanged between 2 reactants. So in this case you can see 2 reactants are there. First is this one BaCl2, next one is Na2SO4. okay, this is barium chloride and this one is sodium sulfate. yes, sodium sulfate. okay, तो अब इसमें अभी क्या है, जो आयन से एक दूसरे एक्सचेंज हो जाएंगे यहाँ पर, फिर क्या बनेगा इसमें, ये देखिए इसमें बेरियम सल्फेट हो जाएगा। तो बेरियम जो है ये सल्फेट के साथ हो जाएगा, और ये जो है क्लोरीन ये
सोडियम के साथ चला जाएगा। अब ये देखो कैसे बन रहा है, इक्वल टू उधर जगह नहीं इसलिए हम बना रहे हैं इसका, तो इसका हो जाएगा बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट का स्टेट क्या है, बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट बनेगा उसमें, ठीक है। वो जो प्रेसिपिटेट के बारे में बता चुका हूँ, प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट इसमें फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट और क्या बनता है इसमें, सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक होता है, सोडियम क्लोराइड। अब हम देखते हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है। अब ये देखो सोडियम जो है, ये जो सोडियम है क्लोराइड के साथ आ गया, ठीक है, क्लोरीन के साथ आ गया ये, तो सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जो कि कॉमन साल्ट है। ये केमिकल फॉर्मूला ये है। आप ये नहीं कर सकते इसमें कि हाँ भाई यहाँ Na2 बचा, आप 2 यहाँ लगा दो और यहाँ 2 यहाँ लगा दो, नहीं, तो ये फिर Na2Cl2 ये सोडियम क्लोराइड होगा ही नहीं, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं है। तो इसलिए यहाँ फिर हम जो है उस रूल का ध्यान में रखते हैं, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो इसलिए हम यहाँ पे इनको लगा नहीं सकते हैं। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको करोगे, बैलेंस करोगे, तो ये आराम से बैलेंस ऐसे हो जाएगा कि यहाँ से 2 लगाना है साथ में। अब ये देखो 2 था, 2 सोडियम हो गया और 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन आर देयर, 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन आर देयर, ओके, सिंपली। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। अब इसके बाद हम देखेंगे, जो पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है एक्सोथर्मिक, फिफ्थ है वो, फिफ्थ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ओके। एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि हियर द हीट इज क्रिएटेड इन दिस रिएक्शन। थर्मिक जो थर्म आ जाता है, इसमें मतलब समझने का हीट की बात हो रही है, हीट इज क्रिएटेड। अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं एक्सोथर्मिक का। फर्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, ठीक है। एक्चुअली जो कैल्शियम ऑक्साइड होता क्या है, जैसे आप व्हाइट वॉश करते हैं, तो व्हाइट वॉश करने के लिए जो मार्केट जिसको आप चूना बोलते हैं, चूना लेने जाते हैं, पॉलिथीन पैक आता है, उसको आप जैसे पानी डाल दो उबलना शुरू हो जाता है वो, ठीक है। कई बच्चों के हाथ भी जल जाते हैं उसमें, इतना खतरनाक है, पानी डालने का बहुत भयंकर हीट देता है ये कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। वाटर में किया आप तो क्या बनेगा इससे देखो, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, मैं अलग से इसका लिख दूंगा, CaO का क्विक लाइम, CaO, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, OXID, आल्सो नोन एज, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, QUICK, क्विक लाइम, लाइमन चूना होता है, ठीक है। तो आप इसको जैसे पानी डालोगे एकदम ये बॉयल होना, मतलब गर्म होगा, फिर पानी को उबाल देता है ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्विक बोलते हैं, इसको जल्दी से तैयार होने वाला चूना, ओके। द लाइम विच इज गेटिंग प्रिपेयर्ड इन वेरी शॉर्ट नोटिस, जल्दी से, क्विकली, इसको क्विक लाइम इसलिए बोलते हैं, CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को। ये वाटर में डालोगे तो क्या बनता है, स्लेट लाइम बनता है, इसका फॉर्मूला स्लेट लाइम का है Ca, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। तो इस बारे में लिख देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैक्ड, या यहीं पे लिख देते हैं इसका, ये बनता है। अब बचा क्या देखो, और इसमें
हीट, आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में जैसे आप डालते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, जिसको हम स्लैक लाइम भी इसको बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, also known as slacked lime, SLAKED, slacked lime. Slacked lime. Okay, तो slacked lime कैसे बना? जैसे you may face a question in your exam that write a chemical equation for the formation of slacked lime. Slacked lime लिख दिया तो स्लैग लाइम का वो फॉर्मूला ही पता नहीं बोलते हैं। तो आप यदि ये भी याद हो जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, बी एसिड बेस क्षार है ये, तो इसका फॉर्मूला है Ca स्मॉल बकेट उसमें OH बकेट के नीचे 2, यस है ना। तो इस स्लैग लाइम इसको बोलेंगे इसको। अच्छा नेक्स्ट अपना अब देखते हैं ये बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस नहीं होगी तो मैं डायरेक्ट जो है इसका बैलेंस का इसमें ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है ये, ठीक है। कैल्शियम का 1 एटम, कैल्शियम का 1 एटम, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 1 2 2 है, ऑक्सीजन के 2 है, ठीक है। और हाइड्रोजन के यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो ये हीट हो रही है, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक विच the chemical reaction which creates या forms या or gives heat, that is called exothermic chemical reaction. फर्स्ट एग्जांपल हो गया, इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है। इसको भी आप टाइटल दे सकते हो, इसको आप टाइटल दे सकते हो फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ड लाइम, इसको आप टाइटल दे सकते हो। इसको तो पहले जो केमिकल रिएक्शन है इसको आप दे सकते हो, ये वाला इसको आप नाम दे सकते हो, ताकि ये आपके माइंड में रहे कि यार ये जो है ना एक्स्ट्रा आपको एक टूल आपको मिल जाएगा इस एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के एक एग्जांपल को याद करने का। फर्स्ट, दूसरा ये दिमाग में इस तरह क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है केमिकल सब्सटेंसेस, स्लैक्ड लाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्लैक्ड लाइम और ये कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, क्विक लाइम स्लैक्ड लाइम, ठीक है। तो एक और आएगा आगे, जब वो आएगा तभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों एक फैमिली के, दो तो ये मिल गए, तीसरे का हम नेक्स्ट आगे करेंगे। तो इसका टाइटल दे सकते हो फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ड लाइम, SLAKED, स्लैक्ड लाइम। दूसरा आपका जो केमिकल रिएक्शन है एक्सोथर्मिक का, वो है आपका, इसका टाइटल दे देते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, अब देखो नेचुरल गैस में क्या आएगा आपके, मीथेन है, CH4, ये किसका फॉर्मूला है, मीथेन का, CH4 मीथेन का है, जिसमें wherein in which there is 1 atom of carbon and 4 atoms of hydrogen are there. That is 1 atom of carbon and 4 atoms of hydrogen form methane, methane और नेचुरल गैस। तो ये क्या है, ये नेचुरल गैस है, ठीक है। ये नेचुरल गैस है, CH4 नेचुरल गैस है। अब आप इसको बर्न किस में करवाएंगे, आप जब बाहर इसको बर्न करवाएंगे तो ऑक्सीजन में, ठीक है। तो आपका आ गया ऑक्सीजन। आप इसको बर्न करने से क्या बनेगा, अब देखते हैं क्या बनता है इसमें। एक तो बना आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, और बना आपका पानी बना, वाटर बना, और हीट इससे निकलती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की। ओके,
अब देखते हैं बैलेंस है या नहीं है। CH जो कार्बन का 1 है या 1 है, ओके ये तो बैलेंस है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के 4 है, अब ये हाइड्रोजन का 2 है, 2 ही है सिर्फ, ओके। और ऑक्सीजन का यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 ये हो गया, ये 3 हो गया, तो अनबैलेंस है ये। तो अब बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे इसमें, आप इसको बैलेंस करने के लिए आप इसको क्या करोगे कि आपको सिर्फ यहाँ 2 लगा देना है, ठीक है। अब 2 लगा के देखते हैं, लगाने के बाद क्या होता नहीं होता है। ये अपना अनबैलेंस था, हाइड्रोजन के 4 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो गए, और ऑक्सीजन का 2 है, और यहाँ पे 2 ये हो गया और 2 ये हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो आप ये 2 और लगाओगे, ठीक है, ये इसमें हो जाएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अपना फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन। जब हम जो रेस्पिरेशन जो करते हैं, जो उसका और या फोटोसिंथेसिस, ठीक है, उसमें भी हीट जो है, उसमें हीट उसमें फॉर्म होती है, हीट उसमें क्रिएट होती है। तो उसका ये सीधा सा है, तीसरे नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको तो याद ही कर लो, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या इन्वॉल्व है, कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स, और ऑक्सीजन के 6 एटम्स, ठीक है। और इसमें मिलता है अपने ऑक्सीजन, जिसको करवाते हैं रिएक्शन, ठीक है। तो बनता क्या है, अब ये देखो आप इधर, इसमें CO2 बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, पानी बनता है H2O, ठीक है, और हीट बनती है। और इसको क्या बोलते हैं, ये ग्लूकोज बोलते हैं इसको। फिर रेस्पिरेशन रिएक्शन बोल दीजिए इसको, या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बोल दीजिए इसको, ठीक है। इसके 2 नेम्स हैं। तो अब ये क्या बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 6 लगाना होगा, और यहाँ भी 6 लगाना होगा, और यहाँ भी 6 लगाना होगा, ठीक है। देखो 6 6 6 6 6 6, मतलब 6 माइंड रखोगे आप। 6 कितनी बार 6 आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 6 इज देयर, ओके। सो ग्लूकोज का फार्मूला याद रखिए, इसमें 6 बनाया, 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन 6, और दोनों के बराबर 12 हाइड्रोजन, ठीक है। C6H12O6 प्लस, ये डायरेक्ट बैलेंस का बता रहा हूँ मैं, 6O2, ओके, 6CO2 6H2, देखो 6 ऑक्सीजन के साथ 6 लग रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ 6 लग रहा है, और वाटर इसके साथ 6 लग रहा है। और जो तीनों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में, आपको पता है कि सब बहुत कॉमन चीज है ये, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो तीनों की पहले 6 6 6 है। मैं याद करने का बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो जो ऑक्सीजन है उससे पहले 6, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे पहले 6, वाटर है उससे पहले 6, ठीक है। ये एकदम कॉमन है, ये 6 6 है, बाकी फॉर्मूला एज इट इज है, और ये पूरा बैलेंस है, आप देख सकते हैं। हम तो देखते हैं, यहाँ कार्बन के 6 है, ठीक है, यहाँ देखो 6 कार्बन, हाइड्रोजन के 12, अब यहाँ काउंट कीजिए, 6 2 12 हो गया, ये आपका ये हो गया। अब बचा क्या, ऑक्सीजन का 6 ये रहा और 12 ये रहा, 6 और 12 18 होना चाहिए ऑक्सीजन का, 6 2 12 और 6 ये है ना, प्लस 6 कितना होगा 18, इधर भी 18 है, देखो 6 और 12 और ये वाला जो है 6, कितना हुआ 18, क्लियर। अब
नेक्स्ट जो लास्ट जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एंडोथर्मिक में एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट इन एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन द हीट इज एब्जॉर्ब्ड, उसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है और यहाँ हीट क्रिएट होती है, ठीक है, फॉर्म होती है, तो दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। अब हम उसकी बात करते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। पहले इसको मिटा देते हैं पूरा, फिर करेंगे आराम से। रुमाल था यार, कहाँ गया? कपड़े से करते हैं। बस पहले इसके आगे कपड़े मारूं, टाइम लेता है मिस्टर, इतना क्लीन नहीं करता, देखिए इतना क्लीन करता, हल्का सा नहीं रख देंगे उसको। याद हो गया बेटा ये वाला भाई, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, दोनों से पहले 666 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है ये है एंडोथर्मिक, ENDOTHERMIC, एंडोथर्मिक। हियर हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट को यहाँ सौंप लिया जाता है, ठीक है। अब इसका इन एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हियर हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जब आप जैसे अभी ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, जो कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ आप हीट को अप्लाई करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट ये जो केमिकल रिएक्शन क्या है, जो हीट है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और जो अपने जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो होंगे कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है मैंने बताया था पहले, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, क्विकलाइन, ठीक है। एक और जो बना था जो बताया था इम्पोर्टेंट है, वो था आपका फॉर्मूला था उसका, क्या था उसका फॉर्मूला, उसका था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ना, कैल्शियम बल्कि OH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी आप याद नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइन, क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइन, SLAKD, स्लैक्ड लाइन, लाइन में छूना, ठीक है। अब ये थर्ड जो अपना ये आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहा था ना आपसे, एक आएगा नेक्स्ट, वो ये कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये आपको याद करना है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, प्रेसिपिटेट है, ये क्या है, प्रेसिपिटेट है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये प्रेसिपिटेट है। अब इसका मैं बताता हूँ आपको, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट पे हीट हम अप्लाई करते हैं इस केमिकल रिएक्शन में, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विकलाइन बोलते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें इवॉल्व होती है गैस, ठीक है, और हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ये इसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, ये जो आप हीट दे रहे हो, जो हीट यहाँ अप्लाई कर रहे हो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। सो हियर इन एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब। अब एक चीज जो एक्स्ट्रा मैं आपको बताता हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि ये थ्री नेम्स है ना आपके, ये कैल्शियम ऑक्साइड, मैं फिर कह रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड क्विकलाइन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इट इज कॉल्ड स्लैक्ड लाइन।
जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये प्रेसिपिटेट कहलाता है। ठीक है, अब मैं एक अलग से आपको इसमें बताता हूँ, इसमें इसी का मैं बताता हूँ आपको। देखो इसी से जुड़ा हुआ मैं एक केमिकल रिएक्शन देता हूँ, उसका इससे वो नहीं है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको पानी मिलाओ, इसको पानी में मिलाते हो आप, और तो क्या बनेगा आपका, यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में है, तो क्या बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्विनस फॉर्म में मिलेगा ये, और आपको CO2 गैस की स्टेट में प्राप्त होगा। ये इक्वेशन मैंने क्यों लिखी है, ताकि इनका जो रिलेशन है ना आप समझ सको। देखो जो कैल्शियम कार्बोनेट पर आप हीट अप्लाई करते हैं तो क्विक लाइन उनको प्राप्त होता है, क्विक लाइन और CO2। ठीक है, और जब आप इसको कैल्शियम कार्बोनेट को पानी मिलाते हैं, यहाँ आप इसको गर्म कर रहे हो, तो ये जो आप मार्केट से लेके आते हो कैल्शियम ऑक्साइड व्हाइट वॉश के लिए, ये आपको मिलता है, ये आपको इससे मिलता है और CO2 भी मिलती है। लेकिन यहाँ आप कैल्शियम कार्बोनेट को पानी मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये मिलता है और CO2 मिलती है। अब आप इस चीज को समझिए, जब आप व्हाइट वॉश करते हैं, व्हाइट वॉश के लिए आप ये लेके आते हो कैल्शियम क्विक लाइम लेके आते हो। ठीक है, इसको आप पानी में डालते हो, जो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में उसको हमने पढ़ा था। तो जैसे आप इसको कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम को पानी में आप डालते हैं तो वो हीट देना शुरू कर देता है, वो पानी को उबालने लगता है, तो उसको व्हाइट वॉश के लिए काम में लेते हैं। उसको हमने व्हाइट वॉश कर दिया। ठीक है, इससे हमने क्या किया, व्हाइट वॉश कर दिया आपने। तो व्हाइट वॉश करने के बाद में होता क्या है कि वो ये जो है ना, व्हाइट वॉश करने के बाद में ये जो है कैल्शियम वो ये बन जाता है। 2-3 दिन में वो उसमें क्या होता है कि थोड़ा जो वाटर जो आप बताए हो ना, ये जो एनवायरनमेंट में जो वाटर होता है, एनवायरनमेंट वाटर वेपर्स होते हैं, वो उसमें रिएक्शन करता रहता है वो। ठीक है, इसको आपने पानी में डाला और वॉल पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद में क्या है कि वो ये बन जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट जब लगा दो या 3 दिन तक, जो उसमें जो वाटर कंटेंट है अपने एटमॉस्फेयर में, एयर में, वो इसे रिएक्शन करता रहता है और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है, ये जो क्या है स्लैक्ट लाइम। ओके, स्लैक्ट लाइम है और CO2 भी फॉर्म होती है। तो वो जो व्हाइट वॉश की जो चमक, जो शाइनिंग है, वो इसकी वजह से आती है। ठीक है, ऑन पासिंग ऑफ एक्सेस CO2 गैस थ्रू, ये सब चीजें हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये तो इंपॉर्टेंट था, ये कोरिलेट हो रहा था, इसलिए मैंने इसको कोरिलेट कर दिया, क्योंकि ये जो पेज है मेरे पास ये चैप्टर नंबर 2 का ही है। आपको समझाने के लिए ये तीनों चीज़ आपको याद करनी है। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम कहते हैं इसको, और जो कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, तो और कैल्शियम और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये 60 था हमारा। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी सारी जो केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ाई की, हमने कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, एंड अगेन डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन। There's 3 types of decomposition chemical reactions are there. First is thermal decomposition reaction, second is photochemical
decomposition reaction, and third is electrolytic decomposition reaction. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, फिर आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव जो रिएक्टेंट होते हैं वो दैट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव रिएक्टेंट। ओके, यस, जो शुरू के टू जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसमें मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि उसमें इन कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन टू रिएक्टेंट कंबाइंस टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, एंड अपोजिट टू इट इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन वन single reactant decomposes into two products. Okay, now थर्ड था अपना डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ था डबल डिस्प्लेसमेंट। इन डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। ओके, जो हमने जिंक सल्फेट का वो हमने देखा था उसमें। फिर अच्छा, फिर आता अपना फिर तो हमने बात की थी एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन की। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन में हीट इज क्रिएटेड and in endothermic chemical reaction heat is absorbed. In this case you can see when the heat is applied with the calcium carbonate, you can see this calcium oxide and carbon dioxide is formed. Okay, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। लेट्स सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। ओके, and next chapter is एसिड एंड बेसिस। जो मेरे नोट्स हैं ये आपको सब जो है वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे, इनको सबको स्कैन करके और आप आराम से, मैंने बहुत ही प्रिसाइज वे में नोट्स बनाए हैं, जो आप जो कुछ मैंने बताया वो सब आप उसमें पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, at later stage these notes will come with my explanation in computer screen itself. Okay, I won't be at the whiteboard, I will be there in computer screen. By then, see you, all the best.